روشنی ٹی وی کی جانب سے عوام کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارک کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعامات۔ رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ متحدہ ضلع نظام آباد میں جشن آزادی کا پرجوش اہتمام، شہر کی ہر گلی میں جشن کا ماحول۔ BRS کی بہترین حکمرانی کے سبب ریاست ترقی کی جانب گامزن، کاماریڈی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں منعقدہ جشن آزادی تقریب سے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھرام۔ ایک وکیل نے کیا اپنے ہی کلائنٹ کا بے رحمی سے قتل، بانسواڑہ میں پیش آیا واقعہ، محکمہ پولیس نے وکیل کو لیا حراست میں۔ نظام آباد پولیس پریڈ گراؤنڈ میں جشن آزادی تقریب کا پرجوش اہتمام، بہترین خدمات انجام دینے والے ملازمین کی خدمات کی گئی ستائش۔ ضلع BRS صدر جیون ریڈی، MLA بیگالا گنیش گپتا نے کی شرکت۔ GDPL کے روشنی ٹی وی دفتر پر جشن آزادی تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ تلنگانہ کی ترقی کے لیے عوام کا ساتھ ضروری، چیف منسٹر KCR کی جانب سے اعلان کردہ اسکیمات سے عوام استفادہ حاصل کرے، MLA جیون ریڈی۔ بودھن حلقہ اسمبلی بورڈ کمیٹی اجلاس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل، متحدہ ضلع MLC کے کویتا کریں گے شرکت، کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل، بودھن رکن اسمبلی شکیل احمد۔ شہر نظام آباد کے اقلیتی علاقے میں جشن آزادی کا پرجوش اہتمام، ہر گلی میں سجاوٹ و ہر گھر پرچم۔ ہندوستان کی آزادی میں علماء اکرام و مسلم رہنماؤں کی بڑی قربانیاں شامل، نوجوان تاریخ کا مطالعہ کرے۔ دفتر تلنگانہ جمعیت الحفاظ پر پرچم کشائی تقریب سے ذمہ داران کا خطاب۔ 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر دفتر تلنگانہ جمعیت الحفاظ پر صدر حافظ واجد نواز و تنظیم کی جانب سے جشن آزادی تقریب و رسم پرچم کشائی کا اہتمام رکھا گیا، جس میں ضلع صدر جمعیت علماء مولانا سید سمیع اللہ، حج کمیٹی صدر مولانا اسماعیل عارفی، موظف لیکچرر محمد ناصر صاحب، سابقہ عیدگاہ و قبرستان کمیٹی صدر افضل الدین صاحب و دیگر علماء و حفاظ نے شرکت۔ رسم پرچم کشائی صدر ضلع جمعیت علماء مولانا سید سمیع اللہ نے انجام دی۔ اس موقع پر ذمہ داران نے تمام ہندوستانیوں بالخصوص شہریان نظام آباد کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ملک کی آزادی میں مسلم علماء و رہنماؤں کا بڑا رول رہا۔ ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہوئے اس ملک کو آزاد کروایا، جن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے نوجوانوں کو بزرگان اسلام و مجاہدی آزادی کی تاریخ کی معلومات حاصل کرنے کی اپیل کی۔ الحمدللہ آج تلنگانہ جمعیت الحفاظ کے آفس پہ جو بودھن روڈ پر واقع ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر مولانا سید سمیع اللہ صاحب دامت برکاتہ ہوں، صدر جمعیت العلماء ضلع نظام آباد، وہ امام و خطیب مکہ مسجد میں جھنڈا چڑھایا اور ہم جمعیت الحفاظ کی جانب سے تمام ہندوستان کے عوام کو، تمام دنیا کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ 76ویں سالگرہ اور 77واں دن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ڈویژن نمبر 53 مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد ماجد صدیقی کی قیادت میں جشن یوم آزادی تقریب کا پرجوش اہتمام۔ وطن عزیز کی 77ویں یوم آزادی کے جشن کے مد نظر شہر کے بلدی ڈویژن نمبر 53 کے مختلف مقامات پر مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد ماجد صدیقی کی قیادت میں
مختلف مقامات پر پرچم کشائی تقریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی ضلع صدر مجلس شکیل فاضل، ڈپٹی میئر ادریس خان، ڈویژن نمبر 53 مجلس صدر عظمت خان، کارپوریٹر اعجاز حسین، معاون کارپوریٹر ایم اے شہباز دیگر نے شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر نوجوانوں نے ان کا بائک ریلی کے ساتھ استقبال عمل میں لایا۔ جوش و خروش کے ساتھ تمام افراد کی گل پوشی و شال پوشی انجام دی گئی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ شیخ احمد، ڈاکٹر رضی شتاری، شیخ لائق، شیخ علیم، ایوب خان و دیگر موجود تھے۔ جشن یوم آزادی کے موقع پر سینئر مجلس اتحاد المسلمین قائد رفعت محمد خان و انچارج کارپوریٹر سرفراز خان کے ہاتھوں شہر کے مختلف مقامات پر رسم پرچم کشائی۔ جشن یوم آزادی کے پیش نظر سینئر مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر رفعت محمد خان و ڈویژن انچارج کارپوریٹر حلقہ 59 سرفراز خان نے اپنے رہائش گاہ واقع خلا روڈ پر جشن یوم آزادی و رسم پرچم کشائی تقریب کا اہتمام عمل میں لایا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ضلع صدر مجلس اتحاد المسلمین شکیل احمد فاضل، کارپوریٹر عبدالعلی باغبان، انچارج کارپوریٹر عبدالغفور مقیم نے شرکت کی اور رسم پرچم کشائی انجام دیتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں نیشنل اسکول، نظام آباد ہوٹل، احمد پورہ کالونی، نزد مکہ مسجد، مستحد پورہ کالونی، برکت پورہ، آر کے کمپلیکس، نزد ریلوے اسٹیشن پر پرچم کشائی انجام دیتے ہوئے شہریان نظام آباد و بالخصوص حلقہ 59 کی عوام کو 77ویں جشن یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ گزشتہ 76 سالوں سے ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ہمارے ملک کا دستور اتحاد اور اس ملک میں بولی جانے والی زبانیں پوری دنیا میں اول مقام رکھتی ہیں۔ انہوں نے تمام مذاہب کے ماننے والے افراد سے اپیل کی کہ وہ ملک میں امن و بھائی چارگی برقرار رکھے اور ملک کی ترقی میں حصہ لے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ فیاض صاحب، سینئر سٹیزن، گولڈن جوبلی اسکول ہیڈ ماسٹر سراج صاحب، نیشنل اسکول ایچ ایم ڈاکٹر رضی شتاری، شیخ منور پاشا، شیخ فرید، شیخ ابراہیم، اظہر، عارف، فاروق، نعیم، ابو، سلیم بھائی، عبد الرحمان، ظاہر، انیس و دیگر موجود تھے۔ ایک جہتی و بھائی چارگی کے سبب ہی ہندوستان کو آزادی حاصل ہوئی۔ ایم ایس او جشن یوم آزادی تقریب سے ایم ایس او کا طلباء کو پیغام۔ طلباء کے مسائل کے حل و ان کی اصلاح کے لیے ہر وقت کام کرنے والی طلباء تنظیم مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا شاخ نظام آباد کی جانب سے جشن یوم آزادی کا پرجوش اہتمام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر رسم پرچم کشائی مولانا مستان رضا، میتری ویلفیئر سوسائٹی مستان رضا خائر چندرا شیکھر نے انجام دی اور طلباء کو یوم آزادی کی اہمیت و افادیت سے واقف کروایا۔ اپنے آباء و اجداد کی حیات زندگی و جدوجہد سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی نصیحت کی اور اپنے وطن و برادران وطن سے محبت کا درس دیا۔ اس تقریب میں ایم ایس او خائر نواز رضا، صدیق، ڈاکٹر عرفان، محمد عارف، محمد سہیل، ایڈوکیٹ ذیشان رضوی و دیگر موجود تھے۔ آج 15 اگست یوم آزادی ہے اور ہم سب نے مل کر ترنگے کو لہرایا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے یوم آزادی منایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک رہیں گے مناتے رہیں گے۔ ایم ایس او کی جانب سے، میلاد کمیٹی کی جانب سے مہلا ناگارام ڈرائیورس کالونی میں پرچم یعنی کہ جھنڈا چڑھایا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا یونٹ نظام آباد کی جانب سے آپ تمام حضرات کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری آزادی کا قیامت تک ایسے ہی قائم و دائم رہے، ہمارا ملک کامیابی ترقی کرتے رہے، ہمارے ملک کو کسی کی نظر نہ لگے، یہی دعا ہے۔ جس سے مسلم اسٹوڈنٹ ہر سال کی طرح اس سال مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن انڈیا نے 15 اگست یوم آزادی منائی ہے۔ انشاءاللہ تا قیامت تک ہم لوگ مناتے رہیں گے۔ پھر سے ایک بار آپ تمام حضرات کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ جشن یوم آزادی کا حلقہ 30 میں انچارج کارپوریٹر مجلس اتحاد المسلمین شیخ سلیم کے قیادت میں شاندار انعقاد، مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈپٹی میئر ادریس خان کی شرکت۔
इंचार्ज कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन शेख अब्दुल सलीम की क़यादत में हल्क़े 30 ऑटो नगर सीएम रोड पर जश्न यौम आज़ादी व परचम कुशाई तक़रीब का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से डिप्टी मेयर इदरीस खान ने शिरकत करते हुए रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इंचार्ज कॉरपोरेटर शेख सलीम ने अपने खिताब में कहा कि शहरियान निज़ामाबाद के अवाम बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 30 ऑटो नगर के अवाम को जश्न यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है और कहा कि हल्के को मिसाली बनाने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। मज़ीद तरक्याती काम के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाने का इजहार किया। इस मौके पर अरशद पाशा, अजीज़ राही, मोहम्मद बदरुद्दीन, अम्मू लाला व दीगर मौजूद थे। शहर के सुभाष नगर में वाक़ रोशनी टीवी K6 GTPL दफ्तर पर जश्न यौम आज़ादी तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। ज़िले निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ रोशनी टीवी K6 GTPL दफ्तर पर जश्न यौम आज़ादी तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर GTPL डायरेक्टर राजेंद्र रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। बातज़ात दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कई अफराद ने अपनी कीमती जानों की परवाह ना करते हुए कुर्बानी देने के बाइस आज़ादी हासिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में केबल ऑपरेटर्स राम रेड्डी, अजीज, खुर्शीद, समत, शुकुर, GTPL K6, रोशनी टीवी, समा ब्रॉडबैंड नेटवर्क मुलाजमीन ने शिरकत की। बातज़ा मिठाई की तकसीम अमल में लाते हुए यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। जिले के अवाम को वो रोशनी टीवी K6 GTPL के शायकीन को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। GTPL ऑफिस में K6 और रोशनी की तरफ से यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया है। आज हमारे ऑफिस के CEO राजेंद्र रेड्डी साहब ने झंडा चढ़ाया है और इस मौके पे तमाम K6 के और जो है सो रोशनी टीवी के GTPL के सब्सक्राइब्स को हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मदरसा अबू बकर सिद्दीक सारंगपुर में आज यौम आज़ादी का जश्न पुरजोश अंदाज से मनाया गया। मदरसा अबू बकर सिद्दीक सारंगपुर में आज यौम आज़ादी का जश्न पुरजोश अंदाज में मनाया गया। छोटे मासूम बच्चों ने हुब्बुल वतनी का जज्बा दिखाते हुए मदरसे में तकारीर व नज़में पढ़ी। चूँकि इस दौर में नफरतों की फिजा फैल रही है और मजहब को हथियार बनाकर भाई भाई को दूर किया जा रहा है, जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका लहू जंग आज़ादी में शामिल है। मदरसा अबू बकर सिद्दीक में परचम कुशाई के बाद आज़ादी के वाक़यात को याद किया गया और मुजाहिदीन मुल्क व मिल्लत के वाक़यात याद करते हुए शोहदाए हिंदुस्तान को सलाम पेश करते हुए कहा कि हम आपस में मोहब्बतों और भाईचारे को आम करें और अमन व सुकून जो कि हिंदुस्तान की खुसूसियत है हमेशा बहाल रखने की ख्वाहिश का इजहार किया और कौमी तराने पढ़ते हुए जिंदाबाद की नारे बुलंद किए और तमाम अहले वतन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और डॉक्टर मसीह साहब की ज़ेरे निगरानी में मदरसे में परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर नसीर साहब, हाफिज यासीन साहब, नाजिम और हाफिज अकबर साहब और असातिज़ा साहिबीन, हाफिज इरफान साहब, अब्दुल रहमान साहब, अनवर साहब, मुफ्ती फैसल साहब भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, नेहरू नगर सारंगपुर मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ में आज 15 अगस्त के मौके पर परचम कुशाई का अमल में आया और हम हमारे मदरसे से बस मुल्क भर में यही मैसेज देना चाहते हैं कि मुल्क भर में बस अमन बाकी रहे और भाईचारा रहे और आज जो नफ़रतों की फ़िज़ा फैली हुई है उसको ख़त्म करें और मिलजुल कर मुल्क में रहें। और हम लोग बड़ी खुशी के साथ और हमारे पूरे मदरसे के बच्चे और पूरे मुल्साबों की तरफ से आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुल्क आज़ादी, हमारा देश आज़ाद हुआ, इसके ऊपर हम बहुत खुश हैं और सबको मुबारकबाद देते हैं। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर वादी हुसैन कॉलोनी में पुरमसरत प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाया गया। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर वादी हुसैन कॉलोनी में परचम कुशाई प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में मोहल्ले के तमाम ज़िम्मेदारान शख्सियतें मौजूद थी और तमाम ने हुब्बुल वतनी के गीत गाते हुए यौम आज़ादी का जश्न मनाया और आज़ादी के वाक़यात को याद करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम शहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश
اور اپنی نیک تمناؤں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کی مثال ہے اور ہم تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر بھائی چارگی سے رہنے کی دعا کی اور وادی حسین کالونی کے تمام لوگوں کی جانب سے اہل وطن کو پرخلوص مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر وادی حسین کالونی صدر میر کاظم علی، محمد امجد صاحب، بلدی آفیسر مسیح صاحب، ہارون صاحب، محمد عبدالستار صاحب، محمد مسرت، منور بخاری، ارشد بخاری صاحب، محمد روف صاحب موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وادی حسین کے صدر کی حیثیت سے میں آج پورے وادی حسین کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ 76ویں انڈیپینڈنس ڈے کے مبارکباد دیتا ہوں۔ ہر آدمی اپنی بھائی چارہ سے جینا، اور اپنی کنٹری ڈیموکریسی کنٹری ہے، ڈیموکریسی کنٹری میں ہر ایک کو آزادی ہے اپنا حق جینے کی۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل جل کے رہنا، یہ کر کے اپنی آزادی کو آگے بڑھانا ہے۔ وادی حسین کے صدر صاحب نے بڑے اچھے پیمانے پہ 15 اگست کا جھنڈا چڑھایا گیا ہے یہاں پر۔ بہت خوشی محسوس ہوئی یہ معصوم بچوں کو دیکھ کے، اور ایسے ہی سب مل جل کے رہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم ہیں سب بھائی بھائی، ایسی بھائی چارہ رہے۔ جے ہند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہماری یوم آزادی اور 15 اگست کا جو جھنڈا ہے، یہ ہمارے ہندوستان کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہم تمام نے، ہندو مسلم سکھ عیسائی نے مل کے اس کو آزاد کیا، اور اسی طریقے سے ہم تمام کو مل جل کر رہنا چاہیے، اور ہم اس آزادی کے دن دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مدرسہ میمونہ نسوان چندر شیکھر کالونی نظام آباد پر جشن آزادی اور پرچم کشائی۔ مدرسہ میمونہ نسوان ہلبنات چندر شیکھر کالونی میں 77 جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی انجام دی گئی، جس میں معززین شہر کے ممتاز علماء کرام تشریف لائے، جن میں حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء نظام آباد، وہ ناظم مدرسہ مظہر علوم مولانا محمد اسماعیل عارفی صاحب، صدر ہر سوسائٹی نظام آباد جناب محمد نصیر الدین صاحب، صدر جمعیت علماء جناب محمد افضل الدین صاحب، آرگنائزنگ سیکریٹری جناب عنایت علی افروز صاحب، خازن جمعیت علماء موجود تھے۔ مدرسے کی طالبات نے بہت ہی عمدہ مظاہرہ پیش کیا۔ تمام مہمانوں نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں ناظم مدرسہ حافظ محمد اسد صاحب، امام و خطیب مسجد اسٹیشن نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر مدرسے کے منتظمین و معلمات موجود تھے۔ ملکی آبادی کے لیے خوراک فراہم کرنے والے کسانوں کو یقینی طور پر تحفظ فراہم کرنے کا قانون اسمبلی اسپیکر پوچارام سرینیواس ریڈی نے کیا اظہار۔ ضلع کاماریڈی کے مقام پر واقع اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں منعقدہ ہندوستان کے یوم آزادی تقاریب میں بحیثیت مہمان خصوصی طور پر ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچارام سرینیواس ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے قومی پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر اسپیکر پوچارام نے خطاب کرتے ہوئے ضلع کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دی اور آزادی کے شہداء و تحریک آزادی میں حصہ لینے والوں کی خدمات کو خراج پیش کیا اور کہا کہ ہندوستان غریب نہیں ہے، صرف عوام غریب ہے، اس لیے بہتر حکمرانی کے ذریعے ملک و ریاست کو ترقی کی جانب گامزن کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے ہم زراعت پر مبنی ملک میں 70% آبادی کا انحصار زراعت اور اس سے منسلک شعبوں پر ہے۔ کسان ملک کی آبادی کو ضروری خوراک فراہم کرتے ہیں، ایسے کسانوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست تلنگانہ زرعی شعبے کی ترقی و کسانوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنے کا اظہار کیا۔ نظام آباد سیوا بینک کی جانب سے جشن آزادی کا پرجوش اہتمام۔ نظام آباد بلا سودی سیوا بینک نظام آباد کے دفتر میں برانچ پر یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی گئی۔ اس موقع پر مولانا جاوید احمد بیگ عمری، MN بیگ زاہد صاحب، احمد عبدالعظیم، یحییٰ ظفر صاحب، محمد انور، ایڈیٹر ہلچل تلنگانہ محمد غوث، محمد عمران، عبد الملک، ذاکر اقبال احمد، عبد الوحید کے علاوہ ممبران سیوا بینک ڈائریکٹر موجود تھے۔ ذمہ داران نے اس موقع پر یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی، ملک میں امن و بھائی چارہ، ملک کی ترقی کے لیے دعا کی۔ ہم سیوا بینکس کی طرف سے سارے ہندوستانیوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ سیوا بینکس نظام آباد میں ہے، اور نظام آباد ڈسٹرکٹ کے اندر اس وقت 4 یونٹیں کام کر رہے ہیں، آرمور، باسواڑہ، کاماریڈی اور نظام آباد، اور جلدی انشاءاللہ تعالیٰ بودھن میں بھی قائم ہو جائے گا، امکان ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آزادی کی جدوجہد کے اندر جن لوگوں کی قربانیاں پیش ہوئی تھی، انڈیا گیٹ کے اوپر وہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں، جملہ 95,000 ناموں کے اندر
61,000 से भी ज़्यादा नाम मुसलमानों के हैं, 60% से भी ज़्यादा मुसलमानों के नाम उसके ऊपर दर्ज हैं। कुर्बानी उन्होंने पेश की थी हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए। अफसोस तो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो आज़ादी के लिए ज़र्रा बराबर भी काम नहीं की थी, आज वो ज़िम्मे कार पे लगी हुई है और आज़ादी के जो फल हिंदुस्तानियों को मिले हैं वो सारे फलों से महरूम करने की तरफ लगे हुए हैं। उनकी कोशिश ये है कि जो आज़ादी मिली है, अल्लाह तबारक तआला ने दी है, वो आज़ादी छीन ली जाए। हिंदुस्तान के कितने ही आवाम की प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट बोल करके बेच दे रहे हैं। हम इस मुबारक दिन दुआ करते हैं अल्लाह तबारक तआला से कि सारे हिंदुस्तानियों की तरक्की के जो अवामिल होने चाहिए, अल्लाह ताला हिंदुस्तानियों को सारी की सारी अवामिल दिलाए और ऐसे लोगों को हमारा हुक्मरान बनाए जिनसे हर हिंदुस्तानी फ़ायदा उठाए। हिंदुस्तान आज़ादी हासिल किए हुए 76 साल हो रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ों से जद्दोजहद करके बड़ी कुर्बानियाँ देकर ये आज़ादी हासिल की थी और उनका ये ख्वाब था कि हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का एक मिसाली मुल्क रहेगा। यहाँ मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ज़माने बोलने वाले, मुख्तलिफ कल्चर रखने वाले सब मिलकर यहाँ आज़ादी के अंदर भरपूर हिस्सा लिया है। अब ये आज़ादी के पैगाम मुझे और आपको हर हिंदुस्तानी को दे रही है। जिन अज़ाइम से तुमने मुल्क को आज़ाद किया था, यहाँ के हर शहरी को बराबरी का मौका हासिल होगा, हर एक को यकसां तरक्की के मौके होंगे, बाहमी मोहब्बत और प्यार इस मुल्क का बुनियादी फ़लसफ़ा होगा। तो हम तवक्को करते हैं हुक्मरानों से भी, आवाम से भी, दानिश्वरों से भी और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों से कि इस मुल्क से उस फ़लसफ़े को जिसकी बुनियाद मोहब्बत और प्यार, ईसार और क़ुरबानी है, उसको हम बरक़रार रखेंगे। ये 76 साला जश्न बहरहाल इस बात का पैगाम देता है कि हम अहद करें, यहाँ से नफ़रतें मिटें, मोहब्बतें आएँ और एक दूसरे के बग़ैर होकर मुल्क की तरक्की में एक कलीदी रोल अदा करें। हैदराबाद के बस भवन में मुनक्किदा 15 अगस्त तकरीब में शिरकत करने वाले आर्टिस्ट चेयरमैन रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने की कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। हैदराबाद के टीएसआरटीसी बस भवन के मरकजी दफ्तर में जश्न यौम आज़ादी के पेश नज़र आरटीसी चेयरमैन व रूरल असम्बली निज़ामाबाद बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कंपनी के एमडी वीसी सजनार व कंपनी के मुलाजमीन के हमरा कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। बादशाह पुलिस मुलाजमीन की जानिब से दी गई सलामी को कबूल किया गया। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कंपनी के मुलाजमीन व अवाम को 77वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और टीएसआरटीसी कंपनी को हुकूमत में जम करने के पेश नज़र रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया और टीएसआरटीसी तानाका हॉस्पिटल में कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर मुलाजमीन को मियारी इलाज व मुआलजा फराहम करने पर काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कंपनी के वाइस चेयरमैन एमडी वीसी सजनार, ईडी मनीष शेखर, ईडीए कृष्णकांत, जॉइंट डायरेक्टर संग्राम सिंह, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। మరి భారం పడుతూ ఉంది, మరి ఆదాయం పెరగడం లేదు, రెవెన్యూ పెరగడం లేదని మాట ప్రతిసారి వాళ్ళందరూ నాకు అదే నమ్మకంతో నేను కార్మికుల మీటింగ్లలో కూడా చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది, ధైర్యం ఇవ్వడం జరిగింది. సంవత్సరం మధ్యలో వస్తే బాధపడకండి, మీరు కష్టపడతా ఉన్నారు, ఫలితం బాగుంటుంది, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఏదో రకంగా వాళ్ళు ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారని కూడా చాలా చెప్పడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా అదే నమ్మకంతో పనిచేయడం జరిగింది, అదే నమ్మకంతో ముందుకెళ్ళారు. కాబట్టి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనందరి యొక్క బాధని అర్థం చేసుకొని ఇవాళ సంవత్సరానికి 3000 కోట్లు ప్రభుత్వం భరించే విధంగా వారు తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా గొప్పగా వారికి ఎన్నో కూడా మనం అందరూ కూడా మరి వారికి 77 यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना कार्स की जानिब से बड़े पैमाने पर तकरीब का इनेकाद, वो कार रैली का किया गया एहतमाम।
آج وطن عزیز ہندوستان کی 77ویں یوم آزادی تقریب کا پرجوش اہتمام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر شہر نظام آباد کے مشہور معروف کار ڈیلر و تاجر مالک تلنگانہ کارز کی جانب سے ان کے ونائک نگر دفتر پر کافی بڑے پیمانے پر یوم آزادی تقریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں عوام و طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مالک تلنگانہ کارز ایم فہیم الدین نے پرچم کشائی کی رسم انجام دی اور تمام برادران وطن کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اسی طرح سے ان کی جانب سے ونائک نگر تا بودھن روڈ تک ہر سال کی طرح اس سال بھی کارز کی ریلی نکالی گئی، جس میں نوجوانوں نے کافی بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ محمد سلیم الدین، محمد شعیب الدین، محمد عظیم الدین، محمد وسیم الدین و دیگر موجود۔ BRS حرکیاتی قائد حافظ خان کی قیادت میں شہر کے مختلف مقامات پر جشن یوم آزادی کا پرجوش اہتمام۔ حرکیاتی نوجوان BRS قائد AK حافظ خان کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر ان کا نوجوانوں کی جانب سے شاندار پیمانے پر استقبال کرتے ہوئے آتش بازی کی گئی اور علاقے کے بزرگوں کی جانب سے ان کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت دی گئی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ نوجوانوں نے بائک ریلی کا بھی اہتمام عمل میں لاتے ہوئے یوم آزادی کا جشن منایا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پرویز، اختر، الیاس، عمران، واسی، ببلو، فہیم، عارف، عابد و دیگر موجود تھے۔ شہر کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں انعقاد میں لائے گئے جشن یوم آزادی تقریب میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، وزیر BRS صدر جیون ریڈی، اروند MLA بیگالا گنیش گپتا نے کیا شرکت۔ نظام آباد پولیس پریڈ گراؤنڈ میں یوم آزادی تقاریب ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کے زیر نگرانی میں شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے علاوہ ZP چیئرمین وٹھل راؤ، ضلع BRS صدر آر رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، اربن MLA بیگالا گنیش گپتا، ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہرمنتو و دیگر نے شرکت کی۔ آج یوم آزادی کے پیش نظر شہر کے پریڈ گراؤنڈ میں طلباء کی جانب سے پیش کیے ثقافتی پروگرامز کا مقامی عوام نے مشاہدہ کیا۔ پہلے مرحلے کے طور پر بالکنڈہ سے تعلق رکھنے والے طلباء نے قومی ترانے پر پروگرام پیش کیا۔ بعد وشو وکاس اسکول کے طلباء کی جانب سے پیش کیا گیا پروگرام سب کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب رہا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے ہاتھوں طلباء میں انعامات کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ అర్హత కలిగి ఉన్న కుటుంబానికి ప్రిన్సిపల్ మరియు వడ్డీతో కలిపి ₹1,00,000 వరకు మాఫీ చేయడం జరుగుతున్నది। ఇందులో భాగంగా ఇప్పటి వరకు 23,444 మంది రైతులకు 44.65 కోట్ల రూపాయలు మాఫీ చేయడం జరిగింది। రైతు బంధు పథకం జిల్లాలో 2018-19 సంవత్సరం నుండి వానాకాలం 2023 వరకు 2,60,617 మంది రైతులకు 2,616.90 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలలో జమ చేయడం జరిగింది। వానాకాలం 2023కు గాను ఇప్పటి వరకు 231.18 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలలో జమ చేయడం జరిగింది। రైతు బీమా పథకం జిల్లాలో 2022-23లో చనిపోయిన 831 రైతుల యొక్క నామినీ ఖాతాలలో 41.55 కోట్లు జమ చేయడం జరిగింది। 2023-24 పాలసీ సంవత్సరం గాను జిల్లాలో అర్హత కలిగిన 1,62,992 రైతులకు రైతు బీమాలో నామోదు చేయించడం జరిగింది। मोहम्मद मिनाजुल हक लेक्चरर उर्दू को बेस्ट लेक्चरर अवार्ड हासिल। 15 अगस्त की 77वीं आज़ादी के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतिमाम शोबा हयात के मुख्तलिफ महकमे जात में मेहनत और जद्दोजहद व दियानतदारी से खिदमत अंजाम देने वालों की हिम्मत अफजाई की जाती है। आज बतारीख 15 अगस्त 2023 बवक्त 3 बजे NTR ग्राउंड निर्मल ज़िले के सदर मुकाम पर एक अजीम शान 77वां यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया, जिसमें फ्लैग होस्टिंग के अलावा स्कूली बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम, बिलखुसूस हुकूमत तेलंगाना के अजीम कारनामों जिसमें काबिल जिक्र मिशन भगीरथा और दीगर महकमे जात की कारकर्दगी को नुमाया किया गया। इस मौके पर जनाब इंदिरा किरण रेड्डी वजीर जंगलात व कानून हुकूमत तेलंगाना, जिले कलेक्टर जनाब अरुण रेड्डी, जिले SP प्रवीण कुमार, जिले नोडल ऑफिसर इंटरमीडिएट जनाब परशुराम साहब की मौजूदगी में इंदिरा किरण रेड्डी और कलेक्टर ने मोहम्मद मिनहाजुल हक की 25
साला दर्स व तदरीस के अवाज़ बेस्ट लेक्चरर के एवार्ड से सरफराज किया और नेक तौक़ात का इजहार किया। मोहम्मद मिनहाजुल हक को एवार्ड मिलने पर अजीज व खारिब और सियासी कायदीन बिलखुसूस उर्दू तंजीमों तेलंगाना माइनॉरिटी यूनियन लेक्चरर एसोसिएशन, तेलंगाना गेजेटेड लेक्चरर एसोसिएशन 711, तेलंगाना गेजेटेड लेक्चरर्स 415, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अलावा विनोद कुमार सदर, जनरल सेक्रेटरी सरगार रविंदर, मोहम्मद मतीन अहमद, अब्दुल साजिद, GJC बॉयज निर्मल, मोहम्मद वसीम शकील, उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन सदर निर्मल, मोहम्मद उस्मान सीनियर जर्नलिस्ट, शेख परवेज आलम लेक्चरर क्रीमिया, मोहम्मद खैसर पाशा प्रिंसिपल JG से मोधुल, जुल्फिशा सुल्ताना प्रिंसिपल JG से भैंसा वो उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, वोकेशनल, मराठी मीडियम बिलखुसूस प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज निर्मल ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौक़ात का इजहार किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कारपोरेटर डिवीज़न नंबर 31 मोहम्मद मुनर अली की शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़िदा जश्न आज़ादी तक़रीब में शिरकत व की परचम कुशाई। हरदिल अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीज़न नंबर 31 कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़ियादत में यौम आज़ादी का जश्न का जोश खरोश के साथ एहतिमाम अमल में लाया गया। डिवीज़न नंबर 31 के मुख्तलिफ मकामात पर नौजवानों ने इनका आतिशबाजी के जरिए इस्तकबाल अमल में लाया और बाइक रैली निकालते हुए इनका मुख्तलिफ मकामात पर खैर मकदम किया और इलाके के बुजुर्ग अफराद ने इनकी शालपशी गुलपशी करते हुए इनकी जानिब से जारी बेलुस खिदमात की सताइश की। इस मौके पर इन्होंने इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर मुनाकिदा जश्न यौम आज़ादी में शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी और आज़ादी की अहमियत व जदोजहद यौम आज़ादी से अवाम को वाकिफ करवाया और इलाके की तरक्की के लिए मज़ीद फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए अवाम के तमाम मसाइल हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके हमरा समी हबीब, मुस्तफ़ा, हमीद मौलाना, खिजर, सोहेल चौश, उस्मान, मुन्नू पाशा, शमशू, इमरान, बिलाल, जावेद, इकबाल, असलम, मौलाना महमूद, अमीर कुरैशी, सद्दाम कुरैशी, सलाम चौश व दीगर मौजूद थे। हल्क़े 60 में मौजूद मोहम्मदी कमेटी हॉल में जश्न यौम आज़ादी व परचम कुशाई तक़रीब का मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर अब्दुल गफ़्फ़ार मुक़ीमी की क़यादत में शानदार इनक़ाद। आज शहर के हल्क़े 60 में मौजूद मोहम्मदिया कमेटी हॉल में इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अब्दुल गफ़्फ़ार मुक़ीम की सदारत में जश्न यौम आज़ादी व रस्म परचम कुशाई तक़रीब अंजाम दी गई। इस मौके पर इन्होंने शहरियान निज़ामाबाद बिलखुसूस हल्क़े 60 की अवाम को 77वीं यौम जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और हल्क़े 60 को मिसाली बनाने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अंजाम दिया जा रहा है। मज़ीद तरक्याती काम के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाने का इजहार के इस मौके पर इनके हमरा हल्क़े के बुजुर्ग व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कमेटी हॉल में मोहम्मदिया कॉलोनी में 76वीं यौम आज़ादी परचम कुशाई अमल में लाई गई है और इस मौके पर हमारे डिवीज़न के सीनियर सिटीज़न और नौजवान भी यहाँ पर साथ में परचम कुशाई के साथ अमल में लाई गई है लोगों के साथ। और मैं यहाँ के डिवीज़न नंबर 7 की यहाँ की आवाम को यौम आज़ादी के मौके पर तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। टाटा ACE यूनियन फ्रूट मार्केट की जानिब से यौम आज़ादी जश्न का पुरजोश एहतमाम। डिप्टी मेयर इदरीस खान ने अंजाम दी रस्म परचम कुशाई। शहर निज़ामाबाद के इलाके फ्रूट मार्केट में वाक़े टाटा ACE यूनियन फ्रूट मार्केट की जानिब से यौम आज़ादी तक़रीब का दफ्तर पर शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस खान ने शिरकत करते हुए रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सदर तंजीम मोहम्मद जमील, नायब सदर शेख अहमद और सैयद गफ्फार व दीगर ने तमाम मेहमान खुसूसी की शालपशी गुलपशी करते हुए इनका इस्तकबाल किया और इनकी खिदमात की सताइश की। इसी तरह तमाम मेहमानों को एसोसिएशन की खिदमात से वाकिफ करवाते हुए इसकी जरूरियात से वाकिफ करवाया। इस तकरीब में एडवोकेट जुनैद अली, मोहम्मद समी, शेख जाकिर अली, अब्दुल मन्नान, शेख इस्माइल व दीगर मेंबरान ने शिरकत करते हुए यौम आज़ादी का जश्न पुरजोश अंदाज में मनाया। बांसवाड़ा में एक वकील ने किया अपने ही क्लाइंट का कत्ल। बांसवाड़ा में महकमे पुलिस की जानिब से सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि शिकायत कुनिंदा शेख महमूद सनफ महबूब की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह। इनके भाई शेख अहमद सनफ महबूब, उम्र 45 साल, पता अरफात कॉलोनी बांसवाड़ा में इनके घर पर दूसरी मंजिल की तामीर अमल में लाने के ताल्लुक से सचिन नामी कॉन्ट्रैक्टर को 18 लाख रुपए में होने वाले मुआहदे के तहत 17 लाख रुपए अदा किए गए, लेकिन घर की तामीर मुकम्मल न करते हुए लापरवाही करने वाले शख्स
पर मुकदमा दर्ज करने के ख्याल से अहमद ने एडवोकेट उबैद से कानूनी मशवरा लेने के लिए बतारीख 12 अगस्त 2023 को दोपहर की औकात कार में इनसे मुलाकात करते हुए इससे मुताल्लिका मसाइल के ताल्लुक से फीस की अदायगी को लेकर होने वाले झगड़े की वजह से एडवोकेट उबैद ने अहमद को धक्का देकर निकाल बाहर कर दिया, बल्कि शाबाश पत्थर के साथ हमला करने के अलावा लकड़ी से हमला करने के बायस शदीद जख्मी होने वाले शख्स को हॉस्पिटल में शरीक की जाने से वहां पर तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए फौत होने के ताल्लुक से दी गई शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज अमल में लाया गया। कल यानी 14 अगस्त 2023 को दोपहर के औकात कार में उबैद इनके घर पर मौजूद होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला की फौरी बात इनके घर पहुंचकर इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिस पर मुजरिम की जानिब से इकबाल जुर्म कबूल करने के बाद जिम्मेदार ओहदेदारान की मौजूदगी में पंचनामे का इनेकाद अमल में लाने के बाद मुजरिम को तहवील में लेकर आज कोर्ट में पेश किया गया। 10:30 గంటలకు ఫిర్యాది షేక్ మహమ్మద్ ఇతను ఇస్లాంపూర బాన్స్వాడ గారు వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఒక ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది। అందులో ఏంటంటే తన అన్న అయినటువంటి షేక్ అహ్మద్ వయసు 45, వృత్తి బిజినెస్ అర్ఫాత్ కాలనీ బాన్స్వాడ, ఆయన తన ఇల్లు అంతస్తు పైన ఉన్న ఇల్లు అంతస్తు మీద ఇంకొక పోర్షన్ కట్టడానికి తను ఒక 18 లక్షలకు మాట్లాడుకొని సాజిల్ అనే కాంట్రాక్టర్కు కట్టడానికి ఇవ్వడం జరిగింది। అందులో 17 లక్షల రూపాయలు ఈ సాజిల్కు ఇచ్చేసిండు ఆల్రెడీ, కానీ పని అవ్వడం లేదు, పని పెండింగ్ పెట్టినాడు। దాని విషయమై మాట్లాడడానికి మధ్యాహ్నం 12/8/2023 రోజు మధ్యాహ్నం ఉబేద్ అనే ఒక అడ్వకేట్ ఇక్కడ ప్రాపర్ బాన్స్వాడలో ఉంటారు, ఆయన న్యాయ సలహా గురించి ఈ యొక్క సమస్య నుంచి ఎట్లా బయటపడాలి అతనితో చర్చించుటకు గాను అతని వాటర్ ప్లాంట్ కౌసర్ వాటర్ ప్లాంట్ వద్దకు వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడుతుండగా మాట విడిగి ఫీజు విషయంలో మాట విడిగి గొడవ పెట్టుకొని ఇతన్ని నెట్టివేయడం జరిగింది। షేక్ అహ్మద్ను నెట్టివేసి అతన్ని చంపాలనే ఉద్దేశంతో షాబాద్ బండతోని అతని తలపై కొట్టడము, తర్వాత ఇంకా YSRTP हरकयाती कायद शेख नबी की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न आज़ादी का पुरजोश एहतमाम। शहर निज़ामाबाद के नौजवान हरकियाती YSRTP कायद शेख नबी की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न यौम आज़ादी का जोश व खरोश के साथ एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर नौजवानों ने इनका फूल की बारिश के साथ इस्तकबाल अमल में लाया और इनकी फलाही खिदमात पर इनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी और आज के दिन इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इनके हमरा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बोधन शहर में सेंट्रल यूनियन के ज़ेर निगरानी में यौम आज़ादी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन शहर में सेंट्रल यूनियन के ज़ेर निगरानी में इनेकाद अमल में लाए गए जश्न यौम आज़ादी तकारीब में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन आमिर, बोधन MLA शकील आमिर की शरीक हयात आयशा फातिमा ने शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। बातज़ा मासूम बच्चों में मिठाई की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में सेंट्रल एसोसिएशन सदर लतीफ़, जनरल सेक्रेटरी तनवी, उमर फारूक, मस्जिद के नुमाइंदे सुल्तान मौलाना व दीगर ने शिरकत की। कायद अब्दुल अजीज़ की जानिब से डीज़ल नंबर 33 में जश्न आज़ादी का पुरजोश एहतमाम। शहर निज़ामाबाद के हरकियाती BRS कायद अब्दुल अजीज़ की क़यादत में शहर के बल्दिया डिवीज़न नंबर 33 में यौम आज़ादी का जश्न शानदार पैमाने पर एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर नौजवानों की जानिब से खूबसूरत अंदाज में इलाके में सजावट की गई और इनका बाइक रैली व आतिशबाजी के साथ इनका इस्तकबाल अमल में लाया गया और इनकी बेलोस खिदमात पर अवाम ने इनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम देते हुए इनकी खिदमात की सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा साबिक़ा कौंसिल फारूक अली, अब्दुल अजहर अज्जू, मीर शाहरुख अली, सैयद अशरफ, साबिर अली, शबू, सैयद इब्राहिम, शेख अलीम, सैयद पाशा, शेख फैसल, इरफान खान, संजू कुमार व दीगर मौजूद थे। बोधन में BRS कमेटी इजलास के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां मुकम्मल। मुत्तहिदा ज़िला MLC के कविता का खिताब। कायदीन से बड़े तादाद में शिरकत की अपील MLA शकील आमिर। बोधन की तमाम आवाम को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं बोधन की तमाम आवाम को 76वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम को बताना चाहता हूँ कि कल सुबह BRS पार्टी की एक बहुत बड़ी सभा यहाँ पे बोधन में
होने जा रही है, जिसमें हज़ारों की तादाद में बीआरएस पार्टी के बूथ कमेटी मेंबर्स और बीआरएस पार्टी के वर्कर्स, तमाम लोग जितने भी बीआरएस पार्टी फैमिली के हमारे कार्यकर्ता है, ये तमाम लोग बहुत बड़े हिस्से में, बहुत बड़े उसमें शामिल होंगे जुलूस में। और ये रैली AR गार्डन RK कॉलेज के पास से शुरू होगी। निज़ाम शुगर फैक्ट्री के ग्राउंड में हमारी जो सभा है, इसमें ये 9.5 साल में बोधन में आप लोग मेरे को MLA बनाए बाद, उधर KCR साहब की हुकूमत आए बाद किस तरीके की कारकर्दगी हम लोग अंजाम दिए, इस तमाम चीज़ों के डिटेल आपके सामने रखेंगे। आप तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है, इलेक्शन है, बहुत सारे पार्टी के लीडर आते, यहाँ से 3 बार MLA जिताए आप, एक कांग्रेस के सुदर्शन रेड्डी साहब को मिनिस्टर बनाए। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिए। तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि 2 मिनट के लिए सोचिए। कोरोना की जैसी महामारी में जहाँ पे हज़ारों लोगों की जो है, हज़ारों लोगों का इंतकाल हो गया, लोग तकलीफ़ में, मुसीबत में, परेशानी में बेहाल थे, खाने के लाले पड़े हुए थे, मजबूर थे। ऐसे टाइम पे जो इंसान हज़ारों करोड़ों की जायदाद रखने वाला आदमी आपको कम से कम एक गिलास ना पानी पिलाया, ना कभी आपके दवाई को कुछ पैसे दिया, ना दवाखाने में दिया, ना कभी आपको ऑक्सीजन का एक सिलेंडर ला के दिया। ज़िला सदर MBT ज़हीरुद्दीन जावेद की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई तकरीब का अहतमाम। वो जश्न आज़ादी की अहम से करवाया आवाम को वाकिफ़। ज़िले मजलिस बचाओ तहरीक सदर निज़ामाबाद MLA उम्मीदवार ज़हीरुद्दीन जावेद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुनाक़िदा जश्न आज़ादी तक़रीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी अपने हामियों के हमरा शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने सबसे पहले MBT पार्टी दफ्तर पर परचम कुशाई अंजाम दी, फिर गाजरपेट, ईदगाह मदीना व दीगर मकामात का दौरा करते हुए तक़रीब में शिरकत की और अवाम को यौम आज़ादी की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। वो मजलिस बचाओ तहरीक की कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर इनका अवाम ने जोश खरोश के साथ इस्तकबाल अमल में लाते हुए इनको तहनीत पेश की। BRS सीनियर कारपोरेटर MA खुदूस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद जश्न आज़ादी तक़रीब में की शिरकत और अंजाम दी रस्म परचम कुशी। शहर निज़ामाबाद के सीनियर BRS कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 58 MA खुदूस ने आज जश्न यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्किदा मुख्तलिफ तक़रीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने अहमदी बाजार में तरकारी ताजिरीन की जानिब से मुनक्किदा जश्न आज़ादी तक़रीब में शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इनका ताजिरीन ने जोश खरोश के साथ इस्तकबाल अमल में लाया और इनकी खिदमात की सताइश करते हुए इनको तहनीत पेश की। बातज़ा इन्होंने मदरसा अंजुमन इस्लामिया में उलमा कराम व मदरसा इंतज़ामिया की जानिब से एहतमाम करदा यौम आज़ादी तक़रीब में शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने उलमा कराम के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल अमल में लाया। बातज़ा इन्होंने डिवीज़न के मुख्तलिफ मकामात पर मुनाक़िदा तक़रीब में शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इनके हमरा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद। शहर निज़ामाबाद के हरकयाती कांग्रेस कायद व साबिक़ा वक्फ़ बोर्ड सदर जावेद इकराम की जानिब से जश्न आज़ादी का पुरजोश एहतमाम। आने वाले दिनों में हालात कैसे होते क्या होते नहीं मालूम, नौजवानों में भी मिलजुल के रहना और बुजुर्गों की इज्जत करना और जितने भी लोग हैं यहाँ पर मसाजिद को आबाद करना और मस्जिद में जो भी काम है सब नौजवान कमेटी छोड़ के हर नौजवान का है मस्जिद में भी रहना, सब चबूतरों पे उधर इधर नहीं, मस्जिद में भी इबादत करते रहना और बड़ों की इज्जत करना, बच्चों को भी मस्जिदों तक लेकर जाना। मस्जिदों की कभी भी होंगे हिंदू मुस्लिम ये महल्ले में सब मिलजुल के हमेशा रहे सोए। आज तक ये महल्ले में हमारे सुरन भाई है, हमारे यहाँ पर सुरन भाई हमेशा लेकर यहाँ से गणेश की रथ लेकर जाते हैं, पूरा माइनॉरिटी एरिया में बरकतपुरा और तुम्हारे गाजुल पेट से होते हुए फुलांग में जाती है। आज तक उन्होंने यहाँ पर गाड़ी में उनके दादा के ज़माने से, उनके वालिद साहब के ज़माने से और उन्होंने भी गणेश की रथ लेकर जाते। पूरे तेलंगाना में कहीं रथ अगर जाती तो निज़ामाबाद में जाती, वो हमारे सुरन अन्ना की फैमिली में जाती। तो यहाँ से हिंदू मुस्लिम एक मैसेज जाता निज़ामाबाद को कि निज़ामाबाद दुबे में 38 डिवीज़न में हिंदू मुस्लिम SC ST BC तमाम कौम मिलजुल के रहते।
वो लोग पूछते हमारे को माइनॉरिटी एरिया में तुम लोग कहीं भी फसाद हुआ, कहीं गड़बड़ हुई तो तुम लोग दुबे में रहते, कैसे रहते? तो हम ये बोलते हैं कि दुबे में हमारे को कोई हिंदू, मुस्लिम, एससी, एसटी, बीसी बोल के नहीं है, सब इंसान है वहाँ पर। हम लोग वहाँ इंसान, हमारे नौजवान बच्चे भी इंसान है, हमारे बुजुर्ग, हमारे खवातीन भी इंसान है, सब मिलजुल कर हम लोग वहाँ रहते, इसलिए वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होती, कोई आज तक फसाद नहीं होता। ये हमारे दुब्बे से 38 डिवीजन से निजामाबाद जिले में और तेलंगाना में ये मैसेज जाता है कि सही अगर सेकुलर हिंदू मुस्लिम कहीं रहते तो 38 डिवीजन में दुब्बे में रहते। ये कहते हुए मैं तमाम यहाँ जितने भी लोग यौम आज़ादी के पेश नज़र नौजवान BRS कारपोरेटर बबलू खान ने मुख्तलिफ मुकामात पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए रस्म परचम कुशीदी अंजाम। शहर के नौजवानों के चहीते ख़ायद व BRS कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 56 जनाब बबलू खान, इन्होंने आज 15 अगस्त के मौके पर डिवीज़न नंबर 56 में जश्न यौम आज़ादी का इनेकाद अमल में लाया और रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने तमाम शहरियान निज़ामाबाद बिलखुसूस हल्के 56 के अवाम को 77वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अयूब खान, अब्दुल बारी, M.A. खालिद, डॉक्टर आतिफ अहमद, M.A. ज़हीर, सैयद आबिद, M.A. हमीद, M.A. अजहर, मोहम्मद इलियास, शेख इमरान, तुराब पटेल, सैयद अवैस, M.A. हमीद, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद मुश्ताक, सैयद जाकिर, सोहेल, उमर, इरफान, आसिफ व दीगर मौजूद। बातज़ा इन्होंने ऑटो नगर CM रोड पर तमाम ऑटो नगर एसोसिएशन की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए जश्न यौम आज़ादी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर एसोसिएशन सदर मोहम्मद अमजद व मोहम्मद मसूद की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल अमल में लाया और तमाम जिम्मेदार ने इनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी। इस मौके पर जिम्मेदारों ने इनसे मुलाकात करते हुए ऑटो नगर की मिसाल से वाकिफ करवाया और यहाँ मुकीम तमाम कारोबारी वो वर्कर्स के लिए ऑटो नगर फेज 2 के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर बबलू खान ने इनको तयखुन दिया कि वो अर्बन MLA जनाब बिगाला गणेश गुप्ता वो MLC के कविता को इस जानिब तवज्जो दिलवाएंगे और भरपूर मेहनत करेंगे। इन्होंने तमाम तंजीम के जिम्मेदारों को मुत्तहिद रहने का मशवरा दिया और इनका पूरा साथ देने की बात की। इस मौके पर सैयद जाबिर, साइलू अन्ना, किशोर अन्ना, कुकी सरदार, अनीस अहमद, मोहम्मद खदीर, शेख फयाज, शेख जलील, M.A. सलीम, मोहम्मद गौस, शेख ताजू, शेख मोइनुद्दीन व दीगर मौजूद। हाल ही में प्रेस वालों को 200 चिल्लर फ्लावर्स दिए, वहाँ पर गवर्नमेंट लैंड है, हम सर्वे करेंगे, साहब से बात करके MLA साहब को विजिट कराएंगे, मैडम को विजिट कराएंगे। इंशाल्लाह मैं पूरे भाइयों को वादा करता हूँ, मुझसे जो भी काम होगा, मेरा ऑफिस यही ऑटो नगर में है, 24/7 मुझे कॉल कर सकते, मुझे मिल सकते। मसूद भाई है, अमजद भाई है, जितने भी अपने भाई यहाँ एक्टिव अभी चल रहे हैं ऑटो नगर में, उनसे बात करके कोई भी काम होने दो, ऑटो नगर का नहीं, स्कूल का काम होने दो, आपको हॉस्पिटल का काम होने दो, आपको कहीं एडमिशन का काम होने दो, आपको कहीं गाड़ी पकड़ेगी आपकी, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हुई, अल्लाह ना करे, फिर भी लोगों को नहीं मालूम। आरमूर म्यूनसिपल दफ्तर पर जिला BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। आरमूर म्यूनसिपल दफ्तर पर जिले BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। बातज़ा इन्होंने जिले के अवाम को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि एक तवील पुरअमन तहरीक आज़ादी हमारे मुल्क की आज़ादी की बुनियाद है। पुरअमन जद्दोजहद आज़ादी से हौसला हासिल करते हुए पुरअमन तहरीक तेलंगाना मुनज़्ज़म की गई और तवील जद्दोजहद के बाद अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल हुआ। तेलंगाना ने अपने क़याम के फौरी बाद कई तरक्याती कामों के अलावा अवामी फलाह व बहबूद के हवाले मुल्क की सरफ़हरिस्त रियासत बनने का इजहार किया। ज़िला अदालत अदलिया में जश्न आज़ादी तक़रीब का अहतमाम। ज़िला जज सुनीता कुंचाला ने अंजाम दी रस्म परचम कुशी। अदालत अदलिया पर यौम आज़ादी तक़रीब का पुरजोश एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इनके हमरा ज़िले फैमिली कोर्ट जज शौकत जहां सिद्दीकी, ज़िले एडिशनल जज T श्रीनिवास, ज़िले एडिशनल जज M कनका दुर्गा, सिविल जज N श्रीकांत बाबू, मजिस्ट्रेट K गोपी, PDM जज खुशबू उपाध्याय के अलावा DLSA सेक्रेटरी व दीगर मुलाजमीन व वकला मौजूद थे। इस मौके पर DLSA के तहत मुख्तलिफ तकारीब का भी एहतमाम अमल में लाया गया।
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शॉप एसोसिएशन बरकतपुरा अहमदी बाजार निजामाबाद की जानिब से आज यौम आज़ादी हिंद के मौके पर ज़बरदस्त पैमाने पर जश्न आज़ादी का अहतमाम किया गया। मोहम्मद खुर्शीद अहमद तवक्कल सदर एसोसिएशन ने परचम कुशी अंजाम दी और बिरादान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद खुर्शीद अहमद तवक्कल मोहम्मद अनवर खान जर्नलिस्ट ने खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल खित्ता है। 125 करोड़ अवाम की ज़रूरतों को तकमील कराएं। मुल्क के वसाइल के इंसाफ की बुनियादों पर तकसीम की जाए तो एक शहरी भी गरीब नहीं रह सकता, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुल्क की सारी दौलत पर चंद खानदानों का गलबा है जिनके पास वसाइल है। इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है और जो शहरी मसाइल से दो चार है इनके मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। मौजूदा हालात में अमन व इंसाफ की ज़रूरत है। मुल्क हिंदुस्तान को फिरका परस्ती रुश्वत जराइम से पाक करना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। इस प्रोग्राम में मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अफजल, अजीमुद्दीन, अमीरुद्दीन, मोहम्मद नवीद, मोहम्मद साजिद, अब्दुल रहमान, सैयद अल नबी, मोहम्मद मुसेब दीगर मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी मना रहे हैं। जिन अहबाब ने इसमें शिरकत की है मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ मैं अपने बात से भी अनवर खान साहब को। अजीज़ साथियों, आज हम हिंदुस्तान में 77वीं यौम आज़ादी का अहतमाम कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और मसरत की बात है कि हमारा देश एक अनमोल देश है। यहाँ पर खुदा ताला की बेशुमार नेमतें हैं और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है और इतनी नेमतें किसी और दूसरे मुल्क में नहीं है। लेकिन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हम देखते हैं कि हमारे इंडिया का जो रिसोर्सेस है, इंडिया के जो असासजात है और इंडिया के अंदर जितनी कुदरती मादनियात, कुदरती गैस, कुदरती जवाहरात है, उसका इस देश में ताटी करते हुए इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा अदा कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी चाहिए कि गुज़िश्ता चंद सालों से इस मुल्क को फ़िरक़ा परस्तों की नज़र लग गई और एक मुट्ठी भर फ़िरक़ा परस्त ताकत यहाँ की बरादरियों को, यहाँ के मज़ाहिब को, यहाँ के रिसोर्स को लड़ा कर रिसोर्स पर कब्ज़ा करना चाहती है और छोटे छोटे वाक़यात के ज़रिए आए दिन इस मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है। तो आज के इस दौर में जब इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में जश्न आज़ादी का पुरजोश एहतमाम, शहर की हर गली में जश्न का माहौल। बीआरएस की बेहतरीन हुक्मरानी के सबब रियासत तरक्की की जानिब गामजन। कामारेड्डी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक़िदा जश्न आज़ादी तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम। एक वकील ने किया अपने ही क्लाइंट का बेरहमी से कत्ल। बांसवाड़ा में पेश आया वाकया, महकमे पुलिस ने वकील को लिया हिरासत में। निज़ामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में जश्न आज़ादी तकरीब का पुरजोश एहतमाम, बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन की खिदमत की गई सताइश। जिले बीआरएस सदर जीवन रेड्डी, एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। GDPL K6 रोशनी टीवी दफ्तर पर जश्न आज़ादी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। तेलंगाना की तरक्की के लिए अवाम का साथ जरूरी, चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से ऐलान करदा स्कीमात से अवाम इस्तिफादा हासिल करे, एमएलए जीवन रेड्डी। बोधन हल्का असम्बली बोर्ड कमेटी इजलास के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता करेंगे शिरकत। कसीर तादाद में शिरकत की अपील। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर। शहर निज़ामाबाद के अखलती इलाके में जश्न आज़ादी का पुरजोश एहतमाम, हर गली में सजावट वो हर घर परचम। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।